हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द सिक्स चैप्टर ऑफ द पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज एंड दीज एमसीक्यूज आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द एम लक्ष्मीकांत बुक। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विद द चैप्टर ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपने पहले के कुछ चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड द लिंक ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो. So before starting the citizenship chapter, I want to tell you a thing that citizenship में मैं उतना ही बताने वाला हूँ आपको जितना एग्ज़ाम के लिए relevant है. Hardly any question is asked from this chapter of citizenship, but still it is there in Lakshmikant book. So I am going to teach you just that जितना एग्ज़ाम में आ सकता है. बहुत ज़्यादा डेट्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है. I will teach you very strategically. Now before starting, I have prepared some of the important notes from the chapter. So you just need to know the articles and the articles which are related to what. So let us start with the citizenship. Citizenship clauses are contained in the part 2 of the constitution from article 5 to 11. Now let us once see which of these articles are. So what does article 5 says about? It says about the citizenship at the start of the constitution. So when the constitution started, that was November 29th 26th 1949. Why this date? Because the provisions such as citizenship and elections etc., these were started from this date only. If you haven't watched the lecture 1 or lecture 2, this question is already there. So आप मैं recommend करूँगा आपको कि पहले आप वो सारी videos देख लें and then you start this video. So Article 5 is related to the citizenship at the start of the constitution. Then Article 6 talks about the citizenship rights of the certain migrants from Pakistan to India. After the partition, some people went to Pakistan and some of them came from Pakistan to India. So Article 6 talks about those people, those migrants that came from Pakistan to India. Similarly, like the Article 6, Article 7 talks us about the citizenship rights of certain migrants to Pakistan. Some people, I already told you, came from Pakistan to India. The clauses are contained in Article 6, and some of people went to Pakistan. These clauses are mentioned in Article 7. Now what does Article 8 talks about? It talks about the right of certain people of the Indian origin who live outside India in any country may it be. ठीक है, उन सारे लोगों के राइट्स का मेंशन कहाँ है? आर्टिकल 8 में. अब यहाँ पे मैंने सिटीजनशिप नहीं लिखा है तो ये जनरल राइट्स मत समझ लेना, ये जनरल राइट्स आर मेंशन इन फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, आर्टिकल 19 एटसेट्रा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में जनरल राइट्स के बारे में बात की गई है. सिटीजनशिप राइट्स का क्लॉज आर्टिकल 8 में मेंशनड है. Now, what does Article 9 talks about? It talks about the people who are voluntarily acquiring citizenship of a foreign state are not to be considered as citizens. And this Article 9 confirms the idea of single citizenship. What is single citizenship? मतलब कि आप सिर्फ अगर इंडिया के रेसिडेंट हो, इंडिया के सिटीजन हो, then you can be citizens of only the country India. You cannot acquire citizenship of any other country, just like Pakistan जिसमें डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है. जस्ट लाइक यूएसए, वहाँ पे भी डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है. ठीक है, बट इंडिया डज नॉट अलाउ द कंसेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप. देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दैट इज कन्फर्म्ड बाई आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So Article 10 क्या है? It is continuation of the citizenship rights, and most important article here is Article 11 that tells us Parliament has power to regulate the laws regarding citizenship. ठीक है, so ये वन लाइनर्स में आ सकता है कि which among the following have the power to regulate laws regarding citizenship. ऑप्शन में आपको प्रेसिडेंट दे सकते हैं, वो ऑप्शन में आपको वो लोकसभा दे सकते हैं, ऑप्शन में आपको पार्लियामेंट दे सकते हैं, या ऑप्शन में आपको वो स्टेट लेजिस्लेचर दे सकते हैं. तो यहाँ लोकसभा देख के कन्फ्यूज़ मत होना. पार्लियामेंट के पास वो लॉज, पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा नहीं आता. लोकसभा इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. ठीक है, सो अराउंड इन 5 minutes वी हैव completed the basic information regarding this chapter, and now let's straight away move to the questions.
नाउ ये थोड़ा सा डेटा वाला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है कि आई विल टेल यू ऑल द डेट्स यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ सिटीजनशिप का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वाज born on 26 January 1951 in Rangoon, whose father was a citizen of India by birth at that time of his birth, is deemed to be an Indian citizen by descent. अब let me tell you a thing here. Now the citizenship in India can be acquired in some ways, ठीक है। अब वो वेज क्या हैं? सबसे पहला तो बर्थ। अभी बर्थ का मैं कुछ क्लॉज बता देता हूँ आपको। सबसे पहला तो होता है, इफ़ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिफोर दिसंबर, और बिफोर नॉट दिसंबर, बिफोर July 1 1987। अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है एंड ही और शी इज़ बॉर्न बिफोर 1 July 1987, तो दैट पर्सन और दैट चाइल्ड इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेरेंट्स नेशनैलिटी। मतलब उसके पेरेंट्स चाहे इंडिया के सिटीज़न हो या ना हो, अगर उसका बर्थ आफ्टर 26 जनवरी या बिफोर 1 जुलाई 1987 हुआ है इंडिया में, देन ही और शी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड क्लॉज बर्थ में क्या है? नाउ इफ़ he is born after July 1987 but before 3rd December 2004, then he or she is to be considered, वो जिसका बर्थ हुआ है, he or she is to be considered as a citizen only if either of his parents, ईदर ऑफ पेरेंट्स मतलब ईदर या तो मदर या फादर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड क्लॉज इसमें क्या होता है कि इफ़ अ चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर December 3 2004, देन बोथ ऑफ हिज और हर पेरेंट्स शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिंपल है, बर्थ का अगर क्लॉज है, अगर ही इज़ बॉर्न और शी इज़ बॉर्न आफ्टर 26 जनवरी 1950 और बिफोर 1 जुलाई 1987, ऑटोमेटिकली ही और शी इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेरेंट्स। जैसे ही जुलाई 1987 का डेट क्रॉस हुआ बट बिफोर 3rd December 2004, उसके या तो मदर या फादर ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। December 3 2004 के बाद अगर बर्थ हुआ है तो बोथ ऑफ पेरेंट्स शुड बी द सिटीजन्स। दिस इज़ द फर्स्ट क्लॉज जिसमें बर्थ के थ्रू सिटीजनशिप मिलती है। सेकेंड हमारा होता है डिसेंट, और ये क्वेश्चन डिसेंट पे है। डिसेंट का क्लॉज को क्या क्लॉज है? आफ्टर 26 जन 1950 और बिफोर 10 दिसंबर 1992, ठीक है। अगर इस टाइम पे देयर इज़ एनी बर्थ ऑफ एनी चाइल्ड, देन दी फादर मस्ट बी इंडियन सिटीजन एट दैट टाइम। ऑटोमेटिक सिटीजनशिप का कोई क्लॉज नहीं होता है डिसेंट में, फादर को सिटीजन रहना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, देन द सिटीजनशिप कैन बी ग्रांटेड थ्रू डिसेंट। एंड आफ्टर 10 दिसंबर की मैं बात करूँ 1992, देन ईदर ऑफ द पेरेंट्स, या तो मदर या तो फादर, दोनों में से किसी एक की को इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। एंड इफ़ समवन इज़ बॉर्न December 3 2004 के बाद, देन द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड शुड बी रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट, ठीक है, विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो दो क्लॉज हमने देख लिए, पहला तो हमने बर्थ वाला देख लिया। आई होप कि मैंने बहुत ईजिली आपको ये समझाया, जितना कम्प्लेक्स ये है आई हैव ट्राइड कि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो बर्थ का पहला क्लॉज हो गया। दूसरा, वी कैन एक्वायर इट बाई डिसेंट। थर्ड, वी कैन एक्वायर द सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि बेसिक क्लॉज होता है कि रेसिडेंट होना पड़ेगा या यू शुड रिसाइड इंडिया फॉर मिनिमम ऑफ 7 years बिफोर दी अप्लाइंग। नाउ फोर्थ इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशंस की भी बहुत सारी कंडीशंस हैं एंड वी नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इफ़ टेरिटरी इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, देन ऑल्सो सिटीजनशिप कैन बी ग्रांटेड। अभी दो नए क्लॉज यहाँ पे आ गए, एक तो असम अकॉर्ड, यू नो असम अकॉर्ड,
जिसकी डेडलाइन डेट 1971 होती है। इसका जो अमेंडमेंट ऐड किया गया था वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में असम अकॉर्ड का प्रोविज़न ऐड किया गया था। एंड 7 अभी लेटेस्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में प्रोविजंस ऐड किए गए थे। किनके रिगार्डिंग? एक्सेप्ट मुस्लिम, एवरी रिलीजन सच एज हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और कौन बचे? क्रिश्चियंस। ये सब के सब जो कि आवर नेबरिंग कंट्रीज दैट इज़ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हैं, दे कैन एक्वायर द सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। सो हमने देख लिया बेसिकली 5 वेज होते हैं। एक सेकेंड, बेसिकली 5 वेज होते हैं टू एक्वायर सिटीजनशिप। 5 तो हमने देखे। 6 क्या था? असम अकॉर्ड था एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 जो अभी रिसेंटली अमेंड हुआ था। ओके, नाउ जैसे 5 ways आर देयर टू एक्वायर द सिटीजनशिप, वी कैन लूज द सिटीजनशिप ऑल्सो इन 3 ways। सबसे पहले तो रिनंसिएशन मतलब कि आपने खुद छोड़ दिया सिटीजनशिप, वॉलेंटरली आपने एक्वायर्ड कर लिया सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, दैट इज़ रिनंसिएशन। Second point is of termination. Termination is that the Indian government has cancelled your citizenship, may it be any reason, या तो आप एनिमी नेशन को आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, या बहुत सारे क्लॉज होते हैं इसमें भी, ठीक है। देन दिस कैन बी टर्मिनेटेड। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑफ डेप्रीवेशन, यू कैन बी deprived of the Indian citizenship. तो acquisition of citizenship can be done in 5 ways: by birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory. And 2 extra ways जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बने, दैट इज़ ऑफ असम अकॉर्ड एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट ऑफ 2019. एंड हाउ कैन वी लूज द सिटीजनशिप? उसमें भी 3 क्लॉज है: रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन. सो आई होप कि आपको ये कॉम्प्लेक्स पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे क्या है? डिसेंट. अब डिसेंट की मैंने बर्थ का आपको क्या बताया था? 26 जैन 1950 के बाद. एंड कट ऑफ डेट क्या थी? दिसंबर 10 1992. सो दिस डेट इज़ वेल विद इन द रेंज. एंड यहाँ पे पहला क्लॉज क्या था? इस फादर शुड बी एन इंडियन सिटीजन, उस फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. अगर यहाँ पे ये डिसेंट ना हो के यहाँ बर्थ लिखा होता तो ये फादर की सिटीजनशिप भी मैटर नहीं करती. आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर. ठीक है, समझ आया तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. तो ऑटोमेटिकली अभी देखो डिसेंट है एंड 26 जैन 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 की कट ऑफ डेट के बीच में है. एंड हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या चाहिए कि फादर शुड बी दी सिटीजन ऑफ इंडिया. ये दोनों क्लॉज मीट हो रहे हैं यहाँ पे. सो दिस प्रोविजन इज राइट and the person can be deemed the citizen of India through descent. Second is a person who was born on July 1st 1988 in Itanagar, whose mother is a citizen of India at the time of his birth but his father was not, is deemed to be a citizen of India by birth. अब बर्थ के लिए मैंने क्या क्लॉज बताया था? सबसे पहले तो कट ऑफ डेट क्या थी? 1 जुलाई 1987 के पहले. whoever is born after 1 जुलाई, ठीक है, सॉरी, जुलाई 1 1987 के पहले अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसके मदर या फादर की सिटीजनशिप की हमें नीड नहीं है बर्थ के लिए एक्वायर करने में. ठीक है, अभी जुलाई 1 आ गया है 1988 का, तो ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, ईदर इज मदर और इज फादर शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे मदर उसकी सिटीजन ऑफ इंडिया है बट फादर इज़ नॉट, सो ही इज़ डीम्ड टू बी अ सिटीजन बाई बर्थ. सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट. आई नो कि एक्सप्लेनेशन पार्ट में टाइम लग गया बट आई बिलीव दैट कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 by which of the following ways can a person become a citizen of India? I have told you 5 ways. by birth हमने देखा, by descent भी हमने देखा, by registration भी देखा जिसमें 7 years वाला आप याद रखना कि 7 years का क्लॉज होता है. नेशनलाइजेशन, ये नेशनलाइजेशन क्या भाई? ये गलत है. नेशनलाइजेशन नहीं होता, वो नेचुरलाइजेशन होता है. कंफ्यूज करने के लिए ये टर्म डाला है तो ये गलत है. बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, येस एब्सोल्युटली ट्रू. तो 4 हमारा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 होगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है 2 का.
आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following articles of the Indian Constitution deals with the citizenship in India? So अभी मैंने बताया आर्टिकल 5 to 11 एंड 5 to 11 का डिस्क्रिप्शन भी आई हैव प्रोवाइडेड. ये देखो 5 to 11 ये सारे आर्टिकल सिटीजनशिप के ही तो हैं. वही उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द सिटीजनशिप इन इंडिया, दैट इज आर्टिकल 5 to 11. ठीक है, एंड पार्ट 2 में है, ये याद रखना. So C is the right answer. Let us now move to question number 4. In which of the following years the Citizenship Act 1955 has been amended? तो in total of time अभी तक it has been amended 6 times. ठीक है, तो 86 में भी बताया था ना, 85 में असम अकॉर्ड वाले प्रोविजंस ऐड हुए थे, 86 में भी अमेंड हुआ है, 92, 2003, 2005, 2019 में भी अमेंड हुआ है. तो ऑल ऑफ दिस अबव ऑप्शंस गिवन हियर आर ट्रू. ठीक है, अमेंडमेंट में क्या था डिटेल में वो जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रेलिवेंट एट ऑल. ठीक है, बस ये याद रखना 6 टाइम्स टिल नाउ एज ऑफ द ईयर जनवरी 2025 अभी तक 6 टाइम्स दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड, और लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में हुआ था. दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the Constitution of India deals with the right of citizenship of certain persons residing outside India? अभी 6 में भी हमने देखा था क्या था, पाकिस्तान से जो इंडिया गए उनके लिए. 7 में क्या था, 7 में जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए उनके लिए. ठीक है, तो वो कौन सा आर्टिकल था, यहाँ मैंने बताया था. देखो इसका भी आंसर क्लियरली मेंशन्ड है. ये देखो 8 में था पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव आउटसाइड इंडिया. 9th में था हु वॉलंटरली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री आर नॉट टू बी डीम्ड एज सिटीजन. एंड 10th में था कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट्स. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 8. 9th में क्या था, वॉलंटरली जो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं दे आर नॉट टू बी डीम्ड एज सिटीजन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? I've already told you this is article 11 of the constitution, in which the parliament has the sole authority and the powers to make laws regarding the citizenship. 6 का B हमारा true है, and this is true by article 11. article भी साथ में याद रखना, it is equally important, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स का नेचर है ना वो बहुत चेंज हो रहा है. आपको आर्टिकल्स स्ट्रेट अवे पूछे जा सकते हैं, तो यू नीड टू नो द आर्टिकल्स ऑल्सो. नाउ इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड? तो इट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल पार्ट 2. पार्ट 1 में क्या था, स्टेट एंड यूटीज़ था. पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं. पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़. ओके, पार्ट 5 में क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो ये आने वाले लेक्चर्स में सब कंप्लीट करेंगे हम. आपको सारे पार्ट्स याद करवा दूंगा, आपको सारे शेड्यूल याद करवा दूंगा, एंड ऑल ऑफ दिस विल बी कंप्लीटेड एंड यू विल बी प्रिटी मच कॉन्फिडेंट इन पॉलिटी. ठीक है, पार्ट 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now the next question, we have to match the articles with the provisions given. Now अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 8 तो अभी हमने देखा है, किसके लिए है आर्टिकल 8 हमारा. आर्टिकल 9 चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. आर्टिकल 5 इज़ फॉर दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. अभी इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ. जो पाकिस्तान से इंडिया है उनके लिए आर्टिकल 6, जो इंडिया से पाकिस्तान गए उनके लिए आर्टिकल 7. ठीक है, आर्टिकल 6 कहाँ है, सर्टेन माइग्रेंट्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. ए का हमारा 3 हो गया, ए का हमारा 3 हो गया. देन हमारा आया आर्टिकल 7, आर्टिकल 6. आर्टिकल 6 क्या था, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 अभी हमने देखा, एंड आर्टिकल 9 क्या था यहाँ पे. हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. यस,
Person who voluntarily acquired citizenship of a foreign state are not to be deemed as citizens. आर्टिकल 9। आर्टिकल 8 का यहाँ पे मेंशन नहीं है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले आर्टिकल 8 क्या था। आर्टिकल 8 टोल्ड अस अबाउट दी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया था, सर्टेन राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग इंडिया। तो जितने भी आर्टिकल्स मैंने कराए हैं उसी पे ये बेस क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, कॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन अ पर्सन लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ऑलरेडी टोल्ड यू एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप 5 टाइप्स। We can lose the citizenship through 3 ways: renunciation, termination and deprivation. All of these statements are correct. Now let us come to the last question. Originally the Citizenship Act of 1955 also provided for the Commonwealth citizenship. Yes, the statement is absolutely correct. And how it is correct? Commonwealth क्या? The nations which were earlier पार्ट ऑफ ब्रिटेन या यूके, ठीक है, उन सब नेशंस का जो भी ग्रुप था उसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है। सो सिटीजनशिप एक्ट ने प्रोवाइड किया था फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। द प्रोविजन फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप वॉज रिपील्ड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ओनली 1 हो जाएगा। सो ये हमारा इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो भी इम्पॉर्टेंट था इस चैप्टर में, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता था, थोड़ा सा डेप्थ पे भी मैंने बता दिया आपको। इससे ज़्यादा यू नीड टू रीड ये सिटीजनशिप वाला चैप्टर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेंशन इट इन द कमेंट्स, मुझे बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। डू मेंशन योर सजेशंस ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता रहे कि व्हाट ऑल आई हैव टू इम्प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।